طیارہ حادثے کی وجوہات جاننے کا مشن، تحقیقات کے لیے فرانسیسی ٹیم آج کراچی پہنچے گی۔ بس کے نمائندوں کا جائے حادثہ اور رن وے کا دورہ شیڈیول۔ تباہ شدہ جہاز کے انجنوں کی ممکنہ منتقلی کا عمل روک دیا گیا۔ پی آئی اے کی تفتیشی ٹیم کی بھی آمد، تباہ حال طیارے کا جائزہ۔ طیارہ حادثے میں شہید افراد کی شناخت کا انتظار، لواحقین کے لیے ایک ایک پل گزارنا عذاب۔ عید کے دوسرے روز بھی فضا سوگوار، جاں بحق افراد کے گھروں پر تعزیت کا سلسلہ جاری۔ عید 34 جانیں لے گیا، اب تک 1167 اموات، ملک بھر میں 56,349 شہری متاثر، سندھ 22,491، پنجاب 20,077، خیبر پختونخوا 7,905 اور بلوچستان میں 3,407 کیسز، 17,482 مریض صحت یاب۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، کورونا کی معیشت پر منفی اثرات کے باوجود کئی ارب کے اہم منصوبے جاری۔ سندھ حکومت کا سال کے اختتام تک 100 سے زائد ترقیاتی اسکیمیں مکمل کرنے کا عندیہ۔ بھارتی فورسز کی پھر صف واقعات، سرچ آپریشن کی آڑ میں کشمیریوں کی نسل کشی، ضلع کلگام میں مزید 2 نوجوان شہید، بھاری اسلحہ اور کیمیکل گن پاؤڈر کا استعمال، علاقے میں انٹرنیٹ سروس بھی بند۔ مودی سرکار مقبوضہ وادی میں مسلم کش ایجنڈے پر کاربند، طے شدہ ایجنڈے کے تحت کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کورونا سے متاثرہ عوام کو علاج کی کوئی سہولت میسر نہیں، مشال ملک کا بیان۔ لاہور میں مرغے کا گوشت 260 کے بجائے 350 روپے فی کلو تک فروخت، گراں فروشی پر 3 دکاندار زیر حراست۔ وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کا ٹولنٹن مارکیٹ کا دورہ، قیمتوں کا جائزہ۔ عید کے دوسرے روز عزیز رشتہ داروں سے ملنے کا پلان، یار دوستوں کا بھی دعوتیں اڑانے کا پروگرام۔ تفریح گاہیں اور پارکس بند ہونے پر بچہ پارٹی اداس، گلی محلوں میں جھولوں اور اونٹ کی سواری سے خوب لطف اندوز۔ پوری دنیا میں کورونا کا پھیلاؤ، مرنے والوں کی تعداد 3,46,000 سے بڑھ گئی۔ برازیل میں مزید 703 ہلاکتیں، کیسز کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آ گیا۔ روس میں 155، برطانیہ 188 اور بھارت میں مزید 156 اموات۔ امریکہ میں کورونا کی صورتحال بہتر ہونے لگی، ایک دن میں مزید 617 افراد ہلاک، اب تک تعداد 99,300 ہو گئی۔ 16,86,000 سے زائد شہری مہلک وائرس سے متاثر، برازیل سے آنے والوں کے امریکہ داخلے پر پابندی۔ ٹرمپ نے کورونا کے خلاف بر وقت اقدامات نہ کیے، جس کی وجہ سے تباہی پھیلی۔ امریکی صدر کی ناقص پالیسیوں کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ معروف امریکی دانشور نوم چامسکی ایک بار پھر برس پڑے۔ کورونا پھیلانے کے الزامات جھوٹ کا پلندہ قرار، امریکی قیادت کو سیاسی وائرس لگ گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ بیجنگ سے باہمی تعلقات کو سرد جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے، چینی وزیر خارجہ کی تنقید۔ لاک ڈاؤن میں نرمی، آسٹریلیا میں 85 دن بعد سکول کھول دیے گئے، بچے دوستوں اور ٹیچر سے مل کر خوش، خوب دل لگا کر پڑھائی۔ سعودی عرب میں موسلا دھار بارشیں، سیلابی ریلے میں بہہ کر 2 افراد جاں بحق، مسلسل بادل برسنے سے معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ عید کے دوسرے روز بھی سورج کا مزاج گرم، اسلام آباد، لاہور، کراچی، دادو اور نواب شاہ میں پارہ ہائی، جموں میں درجہ حرارت 38، سری نگر 24، بارہ میں 21، اننت ناگ میں 19 ڈگری رہنے کا امکان۔ پشاور میں تاریخی مسجد مہابت خان فن تعمیر کا شاہکار، 350 سال پرانی مسجد کی دیواروں اور گنبدوں پر خوبصورت نقش نگاری، مغلیہ طرز تعمیر، ملکی اور
गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज। चीन में जिंदगी रवां दवां, सूबे गुआंगडोंग में मैरीटाइम म्यूजियम तैयार, कैप्सूल नुमा अजायब घर की इमारत में कदीम नवादरात को सजा दिया गया। बुलेटिन के आगाज में तैयारा हादसे से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। पीआईए की खुसूसी टीम जाए हादसा का दौरा कर रही है। 7 रुकनी टीम का नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए जाए हादसा का जायजा। कितनी इमारतें जुज़वी और कितनी मुकम्मल तबाह हुई, इसका भी तयन किया जाएगा, जबकि सिविल एविएशन, शहरी इंतजामिया की टीमें भी पीआईए के हमरा हैं। हतमी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत के हवाले की जाएगी। इस अफसोसनाक सानहे में 97 जो अफराद हैं वो शहीद हो गए थे। तो तैयारा हादसा हुआ था ये जुमे के रोज़। पीआईए की खुसूसी टीम जाए हादसा का दौरा कर रही है। 7 रुकनी टीम नुकसानात का तखमीना लगाने में मसरूफ़ है और ऐसे में जाए हादसा का जायजा लिया जा रहा है। कितनी इमारतें जुज़वी और कितनी मुकम्मल तबाह हुई हैं, इसका भी तयन किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शाहमीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहमीर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ औकात पर हमने देखा कि मुख्तलिफ टीमें थी, जो कि सिविल एविएशन और पीआईए की टीम वो यहाँ पे जाए वक़ूआ का दौरा कर रही थी। ताहम अब जो है 7 रुकनी टीम जो है वो नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए यहाँ पे पहुँच चुकी है और जाए वक़ूआ का दौरा किया जा रहा है। जो बिल्डिंग मटीरियल है जो कि इस तैयारा गिरने के बायस जिस इमारतों को नुकसान पहुँचा, उसका भी, उनके बिल्डिंग मटेरियल का भी जायजा लिया जा रहा है, जबकि तबाहशुदा जो इमारतें हैं उनके स्ट्रक्चर को भी जांचा जा रहा है। वहाँ से भी शवाहिद भी लिए जा रहे हैं और साथ साथ जो एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद हैं उनकी भी राय ली जा रही है। कितनी इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है, कितनी इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं इस हादसे के नतीजे में, इसका भी तयन किया जा रहा है। जबकि टीमों के हवाले से बात की जाए तो कौमी एयरलाइन के साथ साथ सिविल एविएशन और शहरी इंतजामिया की टीम जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। हतमी रिपोर्ट के हवाले से बोला जा रहा है कि वफाकी हुकूमत के हवाले की जाएगी। तमाम तर जो तहकीकाती टीमें हैं वो अपनी एक मुश्तरका रिपोर्ट बना के वफाकी हुकूमत के हवाले करेंगे और फिर जो है वो आइंदा के लाए अमल तय किया जाएगा। ताहम अभी भी अगर देखा जाए तो जाए वक़ूआ पे जो तहकीकाती टीमें हैं उनकी आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। जो तैयारे के का मलबा था उसको ताहाल नहीं हटाया गया है। बोला जा रहा है कि जब तहकीकाती टीमें अपना काम पूरा कर लेंगी उसके बाद इस जगह से मलबा हटाने का अमल एक बार फिर शुरू किया जाएगा और टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कि कब ये काम मुकम्मल। जी, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। हमारे साथ ही रहेगा शामिर, हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कराची असलम खान ने। असलम, अभी तो पीआईए की टीम पहुंची है जाए वक़ूआ पर तमाम तर जायज़ा लेने के लिए। ये बताएगा कि फ्रांसीसी तहकीकाती टीम को भी आना है तहकीकात करने, वो कब तक आएंगी? फ्रांसीसी माहिरीन की टीम जो इस हादसे के तहकीकात के लिए पहुंच रही है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 11 बजे फ्रांस से पाकिस्तान के लिए रवाना होगी और जो एयरबस के माहिरीन का जो खुसूसी तैयारा है वो कराची एयरपोर्ट पर कल सुबह 6:40 पर लैंड करेगा। फ्रांसीसी जो माहिरीन है वो जब कराची पहुंचेंगे तो जिनकी जो फ्लाइट का टाइम है वो 7 घंटे से जायद है। इनकी जो टीम है जिस जगह इस वक्त पीआईए की जो मुकाम दौरा कर रहे हैं, जिस मुकाम का जो मॉडल कॉलोनी का इलाका है, वहीं पर ये फ्रांसीसी माहिरीन की टीम जो है वहाँ पर पहुंचेगी और जो टीम जो पहले से तहकीकात कर रही है पीआईए, सिविल एविएशन और दीगर इदारों की, उस टीम को ये तकनीकी मावनत फराहम करेगी। टीम अपने साथ जहाज का ब्लैक बॉक्स और इंजन फ्रांस लेकर जाएगी, जिससे हादसे की तहकीकात में अहम शवाहिद सामने आएंगे। फ्रांसीसी माहिरीन की जो टीम है वो कराची में तकरीबन 16 घंटे से जायद अपना काम करेगी और 26 मई की रात यानी कल रात ही 10 बजे वापस फ्रांस के लिए रवाना हो जाएगी। जी अच्छा असलम, ये भी बता दीजिएगा, आपने कहा कि जो टेक्निकल सामान है ये टीम लेकर फ्रांस जाएगी, तो फिर कितना इंतजार होगा नतीजा आने में? देखिए ये बहुत तफसीली से और पुलिस के साथ ताउन करते हुए वबा से खुद को महफूज बनाएं। इस वक्त लाहौर में रहनुमा मुस्लिम लीग नून अयाज सादिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बात करने को तैयार हूँ कि हमने 18वीं तरमीम पे जो जमात में बैठ के फ़ैसला किया शहबाज साहब की क़यादत में और नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में, उसमें हम 18वीं तरमीम पे बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। 18वीं तरमीम पे अगर बात होगी, छोटे सूबे बैठेंगे, मशावरत होगी, फिर इसके ऊपर कोई बात, अगर कोई छोटी मोटी तरमीम ना, ख़त्म करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि 18वीं तरमीम ये सारे सूबों की मशावरत के साथ
यूनैनिमस पास हुई थी। ये नहीं था कि किसी ने इस पे एतराज़ किया था। इसको वापस करना इस वक्त इन हालात में इस इशू आना ये भी बहुत गैर मुनासिब था जिन्होंने ये उठाया। ईद के बाद सियासत को किस तरीके से देख रहे हैं? शहबाज शरीफ की भी 2 जून को तल्बी है नैब में, क्या समझते हैं हुकूमत कोरोना वायरस की बजाय अभी तक इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ? और नैब के बारे में भी कहा गया कि नैब जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा और नैब दोनों अतराफ से एक्टिव होगा। शेख रशीद ने गिरफ्तारी की भी जो है ना वो पेशन कोई की है। देखें, मैं तो ये कहूँगा और ये नैब को भी पैगाम दूंगा, अगर किसी के खिलाफ केस साबित होता है आप ज़रूर पकड़ें, मगर अभी तक अगर आप देखें खुर्शीद शाह साहब, हमजा शहबाज साहब अभी तक जेल में हैं और अभी तक उनके ख़िलाफ़ जिस तरह कहा जाता है कि केस इस्टेब्लिश हो गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। ये अपोजिशन के मेंबरान को पकड़ के पहले अंदर नैब कस्टडी में और फिर जेल में स्टेज पे, ये ना सिर्फ गैर मुनासिब है, मैं तो ये भी नहीं चाहूँगा कि हुकूमती लोगों को पकड़ के पहले जेल में डाला जाए फिर वो, हाँ ये हो सकता है कि हुकूमती लोग कुछ इनसे नाला हों, इनकी परफॉर्मेंस से, इनके झूठ से, इनके यू टर्न से, और वो सोच रहे हों कि पीटीआई में नहीं रहना, शायद उनकी कमबख्ती शायद आ जाए, मगर वैसे कोई बैलेंस नामी चीज़ नहीं है। ना हम बैलेंस चाहते हैं, ना हम बैलेंस देखना चाहते हैं। हम इंसाफ चाहते हैं, जो इंसाफ के तकाज़े हैं पूरे होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, नैब के इदारे को ख़त्म कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट